Okay, so let us solve some problems. Okay. Good afternoon, Yes, sir. sir. Good afternoon. So now the question is from our material. Okay. Question number 75 and page number 29. I think I have sent this material to you. Sir, of redox reaction. Yeah. Oxidation state of iron. Iron in Na2 FeCN5 NO is option 1 +1, option 2 +2, option 3 0, and option 4 -4/3. Solve it. You have to find out the iron oxidation state. Okay. Okay, sir. The oxidation number of each oxidation number या oxidation state is +1 each sodium. +1. NO is also +1 nitrosonium. Okay. Each CN is -1 each CN. Okay. Now you can calculate. Okay. So the whole oxidation state is what? 0. 0. Now there are 2 sodium means okay 2. 2 sodium plus 1 iron plus 5 CN okay plus 1 NO is equal to 0, right? Sir, the whole charge of NO is +1. Yeah, for NO is +1. Okay, sir. Nitrosonium. Nitrosonium. So 2 into 1 plus iron we don't know minus 5 okay plus 1 is equal to 0. 2 plus Fe minus 4 equal to 0. Fe Sir, 2 +2. Second option. Yes, sir. Second option, +2. +2. got Yes, my sir. point? Second option. Yes, sir. Okay, next question. Have you everybody has copied? Yes, sir. Right, sir. Yes, sir. Next question. Question number 76. Oxidation number of carbon in carbon suboxide okay C3O2 option 1 plus 2/3 option 2 plus 4/3 option 3 plus 4 and option 4 minus 4/3. Okay. +4/3. The second option +4/3. The second option, +4/3. Yes, sir. Second option. 4/3. Okay, I have shown you the structure of carbon suboxide. Yes, sir. What was the structure? Yes, sir. Did you remember? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Okay.
So see, carbon plus carbon, carbon, and this is O. Okay. This is known as Okay. carbon. This is the structure of carbon suboxide. Okay. Suboxide. It is not superoxide. Okay. It is suboxide. Good Okay, children. afternoon, sir. Good afternoon. So this is carbon suboxide. Remember it. Okay. Yes, sir. Okay, sir. So yeah. So, sir, what is the value of suboxide? 0. Yes. Total charge is 0. No, sir, I'm asking suboxide. Like in pentoxide, it is -1. Superoxide -1/2. Each oxygen is having -2 charge. See, you can see the structure. No, it is double bond with carbon, so it is -2. It is double bond with oxygen, carbon with -2. Yes, sir. So C3O2 total charge is 0. Now 3 carbon -4 equal to 0. 3 carbon equal to +4. Carbon is equal to +4/3. Right? Yes, sir. This is your correct answer. Okay, this carbon out of, if they want more information, then you have to see that this is carbon 1, this is 2, this is 3. So third carbon is having +2. First carbon is having +2 and second carbon is 0, right? Yes, sir. But on average, we can say that it is 4/3. Got my point? Yes, sir. Okay, question number 76. 76, second one. Right. Next question. Question number 77. Oxidation number of sodium in sodium amalgam. Sodium amalgam, right? So 77. What is the formula of sodium amalgam? Sodium Yes, amalgam sir. is NaHg. Okay, sodium amalgam. NaHd, okay? And you Okay, have to sir. remember, you Okay, have to sir. remember, you have to remember that it is a solution. That it is a solution. It is a solution. It is not a compound. Okay, sir. And if it is a solution, no, so nobody has reacted. Nobody has reacted. That's why the oxidation number of sodium is 0 and 1. mercury is also 0. They have not reacted. So the answer will be 0. Let me see the option first. 77, no? 1 is +2. Sir, in Option- solution, the two reactants does not react. Yeah, they don't react. That's why don't call them as reactant. Call them as component. They The are answer will be option 4. option No, 4 option is 4. Did you Option understand? 4. Yes, Sir. sir. Yes, So remember, it is you should feel that it is a solution. It is a solution actually. Sodium amalgam. Okay, Solution sir. of sodium, sodium and mercury is known as sodium amalgam. Okay, sir. Nobody has reacted. Just they have mixed homogeneously. Sir, I have a doubt. Yes. Sir, in this reaction, N2 plus It 3H2. is not a reaction. It is not a reaction. No, not that reaction. That N2 plus 3H2 is raised to 2NH3. How are you finding the X factors? In which question? N2 plus 3H2 is raised to 2NH3. N 2 2 plus 3H2 plus 3H2. is raised to 2NH3. How are you finding the X factors Of what? of each element? See, I am finding if it is 0, Yes, sir. here I am finding that it is -3. Yes.
So one nitrogen is in zero case. So it is changing it to -3. Yes, sir. So 3 electron change is there per atom. So sir, Yes. oxygen number is 6. Okay, so it is 3 electron changed. Yes, sir. Exchange of 3 electron per atom. Okay, sir. So 2 atom are there, no? So 6 electron exchange. Okay, sir. So if we want to know the equivalent weight of nitrogen, 28 divided by 6. Yes, sir. If only nitrogen means 14 by 3. Okay, sir. In same way, hydrogen. Okay. Yes. Each hydrogen is changing into +1, 0 to 1. Okay. Yes. Okay, sir. So each hydrogen atom is weighting 1 divided by 1. 6 hydrogen Mhm. divided by 6. 1 is the equivalent weight, right? Yes, sir. Next question. Sir, how are you finding the NH3's X factor? NH3 X factor, how I am finding? So I told you earlier, NH3. Any molecule is there, nothing is written, 0 is written. 1 is. Did you understand? Yes, sir. Now just find out how many minus charge are there or total positive charge are there. That is known as X factor. Okay. Right? Okay, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Next question is question number 28. Sorry, 78. Question number 78. Oxidation number of iron in Fe. थोड़ा आवाज कम करो ना, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस मेंटेन करो. फिर देखो क्या हो रहा है. थोड़ा म्यूट कर लो ना जिसके यहाँ आवाज हो रहा है. चलो निकालो. सर वो क्या लिखा? Yes, sir. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन 0.92. Fe 0.94 और ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 1.0. सर वो नीचे वो क्या है सर? 94 200 by 94. नहीं सर वो 0.94. 0.94. इतना अच्छा स्क्रीन क्लियर है. ऐसा भी होता है? 0.94. नहीं मैं वो पूछ रहा था वो एक्चुअली है क्या सर? Yes, sir. क्या है मतलब ऐसे क्या लिखा What रहता is है? that? Yes. NaCl. यहाँ कुछ नहीं लिखा रहा तो 1 है ना. Oh yes sir. Yes. हाँ एटॉमिसिटी है वो. Atomicity of Sir, iron. answer will be 200 by 94. रियली? Yes, sir. कैसे? की रखा हुआ है क्या सामने में? Oh, sir, नहीं. नहीं, sir, 200 by 94 आंसर है. कैसे कैसे कैसे? सर 0.94 को सॉल्यूशन मतलब जब इक्वेशन में लिखेंगे तो 94 by 100 Fe प्लस 1 ऑक्सीजन इक्वल्स टू 0. तो ऑक्सीजन का -2 है तो 94 by 100 Fe प्लस माइनस इक्वल्स टू 2. तो सर 94 by 100 जब उस साइड जाएगा तो 200 by 94. वाह क्या बात है, क्या बात है. ये पूरा क्रैक किया है लोग, पूरा निकालेगा. तो ये देखो ये था 0.94 और x है ना. हेलो. Yes sir. प्लस यहाँ पर कितना था? 0. 1.0 इंटू व्हाट? ऑक्सीजन ना. -2. सब मिला के कितना हो गया? 0. Yes sir. 194x और ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 0. राइट. 0.94 x इक्वल टू -2. फिर
x इक्वल टू 2 ये क्या हो जाएगा? सर 2 सर वो -2 नहीं होगा ये वाला तो चीज इधर आ गया ना, +2 था ना ये, हाँ Yes, सर वो sir. -2 था तो उधर आएगा तो +2 हो जाएगा। तो +2 हो जाएगा ना, तो +2 हो गया, +2 और नीचे आ जाएगा तो 0.94, राइट। 94। फिर ये आ जाएगा 200 और नीचे आ जाएगा 94, राइट। यस सर। ये उसका आंसर। ओके, यस सर। आ रहा है ना ऐसे समझ में? हाँ सर। यस सर। मतलब Yes, sir. फ्रैक्शन में भी आ सकता है आंसर आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 79, क्वेश्चन नंबर 79, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर in CH3 twice sulfur is option 1 0, option 2 +1, option 3 -2, option 4 +3. -2. +1, 2, 3, H3, and then +1 equals to 0. Oh. Sir, 0. सल्फर CH3 है ना खाली, H H H H H H यही है ना सल्फर। Yes, sir. सल्फर का चलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जल्दी जल्दी देखो। सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जल्दी चेक करो। सल्फर का ज्यादा होगा। चेक करो। -2.5 तो अरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी -4. -2 हेलो -2 हेलो, हाँ बोलिए सर। हाँ बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है? -2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलो बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Sir, सल्फर का। -4. अरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ सल्फर का, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और सल्फर का। 3.6 जैसे हाँ फ्लोरीन का होता है 4, ऑक्सीजन का कार्बन का इलेक्ट्रिसिटी 2.55 2.55, ओके। एंड सल्फर का बोलो 2.58 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर का 2.58 Sir, 2.58. 0.58, राइट। Yes, sir. yes sir 2.58 सर इलेक्ट्रॉन 2.58 Sir, कार्बन का कितना है? कार्बन 2.55 कार्बन। ठीक है, तो आप ना एक काम ही कर लो, ये सब चीज लिख लो, ये काम आते रहेगा। हाइड्रोजन, लिथियम एंड सोडियम कितना कम रखो, हाइड्रोजन का 2.1. बेरिलियम और इधर मैग्नीशियम, इधर में बोरोन, ठीक है, इधर एल्युमिनियम, कार्बन, there will be the 3 सिलिकॉन, ठीक है, उधर में बेरिलियम नाइट्रोजन और इधर में फास्फोरस, इधर में ऑक्सीजन, इधर में सल्फर, इधर में कौन है? the answer will be third option sir -2 क्लोरीन,
ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, सबका ना एक बार लिख ही लो। हाइड्रोजन का बोलो कितना? 2.1। लिथियम का? सर लिथियम का नहीं पता। लिख लीजिए, अभी काम आते रहेगा सब। 1.5, 1.2, बोरोन का 2.0, एल्युमिनियम का 1.5, कार्बन का 2.5, सिलिकॉन का 1.8, 8. हाइड्रोजन का 3.0, फास्फोरस का 2.1, ऑक्सीजन का 3.5, सल्फर का 2.5, राइट? 2.5, फ्लोरीन का 4.0, क्लोरीन का 3.0, इसका 2.8, इसका 2.5। ठीक है, यस सर। अब हमें क्या देखना है? ठीक है, तो हमें यहाँ देखना है कि सल्फर है, तो यहाँ पर ना कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 लगभग, सल्फर का भी लगभग उतना ही है। यस सर। है। लेकिन अब याद रखना है कि ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इधर ना कार्बन अपनी तरफ यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा हाइड्रोजन से, और ये इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह सल्फर की तरफ आ जाएगा, इसीलिए यहाँ 2 चार्ज डेवलप करेगा। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ सर, -2 हाँ होगा सर। सर आंसर। तो आंसर -2 आ जाएगा, ये वाला ये तो आंसर आ भूल ही जाएगा। रहा। ठीक है, यस सर। सब फिर से बताइए ना। ठीक है, बता रहा हूँ, 1 मिनट बता रहा हूँ। किसी का माइक हल्का सा मैं सेट कर देता हूँ। देखो देखो, एक बार चैट बॉक्स में भेजो तो किसका आवाज कड़ कड़ कर 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 रहा है, चैट बॉक्स में भेजो। देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे जैसे ऑक्सीजन होता था ना, Yes, sir. अगर ऑक्सीजन हुआ Yes, तो sir. इसमें तो शार्प पता चल रहा है कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो दोनों साइड से एक एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया। ठीक है, यस सर। तो जैसे ऑक्सीजन खींचा वैसे ही सल्फर भी खींच रहा है, इसीलिए -2। Yes, sir. Yes, sir. हालांकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम है, लेकिन थोड़ा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है ना कार्बन के पास, इसलिए इजीली इलेक्ट्रॉन दे दे रहा है सल्फर को। कौन ओके पूछा था? Okay, sir. कौन पूछा था? सर मैंने पूछा था। क्लियर हुआ डाउट? यस सर। सर अगर नॉर्मल मेथड ढूंढेंगे तो नॉर्मल एक में बार नॉर्मल मेथड में दिखाइए। नॉर्मल मेथड में भी -2 ही आ रहा है। नॉर्मल में भी तो मेथड में भी -2 ही आएगा। -2 ही आएगा। देखिए ना, आप चेक कर लीजिए, क्या था? PH3 ना, ऐसा ही था ना? Yes, sir. तो कुछ नहीं यस लिखा है तो सर। 0 लिखा हुआ है। 6 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है, 1 सल्फर है, सब मिला के 0। तो 6 हाइड्रोजन का 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब कार्बन का कितना लेंगे यहाँ पर? 4 नहीं, +4. +4। कार्बन का यहाँ पर लेना पड़ेगा, कार्बन का। ठीक है, कार्बन देखिए यहाँ सर पर 4 एक एक कार्बन, हाँ, एक एक कार्बन का यहाँ पर मान लेते 3 इलेक्ट्रॉन लिया हुआ ना, ये -3, यहाँ से भी 3 इलेक्ट्रॉन लिया हुआ -3, -6. -3 लिया हुआ है, और इधर से इलेक्ट्रॉन तो लॉस किया -6 हुआ आ है, रहा तो है। यहाँ पर +1। एक एक कार्बन का -2 लेना पड़ेगा, एक एक कार्बन का -2, यस सर। -2 प्लस 1 सल्फर इक्वल टू 0। 6 -4 इक्वल टू सल्फर इज इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा बोलो? 2 -2।
सल्फर इज इक्वल टू -2, राइट? Yes, Yes, sir. sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 80. कार्बन का हम लोग -2 लिए हैं, किसका नॉइज आ रहा है? प्लीज थोड़ा चेक कर लो तो, किसका नॉइज आ रहा है? अभी मैं ठीक है, आवाज थोड़ा मेंटेन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80. क्वेश्चन नंबर 80। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट, oxidation number of cobalt, okay, CO, it is not carbon monoxide, cobalt, in Hg, CO, SCN. ठीक है, ये थायोसाइनेटो है, ये थायोसाइनेटो, इसके ऊपर -1 होता है, ओके। Okay, sir. इसके ऊपर हाँ Hg खाली दिया हुआ ना, Hg, तो Silver. Hg के ऊपर मान लीजिए +2 है, मरकुरी 80। Mercury. ठीक है चिल्ड्रन, मरकुरी Sir, ACN single have -1 charge, ना कि चारों तो मिलके -1 charge। Hg प्लस कोबाल्ट प्लस 4 तो SCN इज इक्वल टू पूरा के ऊपर चार्ज कितना है? 0। तो Hg के ऊपर 2 है, कोबाल्ट का मालूम नहीं, इसके ऊपर -1 है, कोबाल्ट इज इक्वल टू +2 कोबाल्ट का +2। ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन 1 2 3 ऑप्शन 4। ऑप्शन 1 में है +2 +1 +3 +5, राइट? समझ में आया क्वेश्चन? Yes, sir. इससे याद रखना है कि SCN के ऊपर माइनस होता है, इसको कहते हैं थायो सायानेट, ठीक है, थायोसाइनेट, Yes, sir. थायोसाइनेट इसका नाम है, ठीक है। और जब ये इस तरह के मेटल के साथ जुड़ जाता है तो इसका नाम हो जाता है थायोसायानेटो। ये नोमेनक्लेचर जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाएंगे तब बताएंगे। Yes, sir. 81 ऑक्सीजन कैन शो, oxygen can show positive oxidation state in its compounds with, बताइए ऑक्सीजन पॉजिटिव कब शो करेगा? जब उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे ज्यादा होगा। क्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन Sir, option 1, sir, fluorine. एंड सल्फर। Fluorine. तो ऑप्शन 1 fluorine, होगा sir, क्योंकि fluorine. फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, अभी बताया था ना कहीं पे। हाँ सर, Yes, सबसे sir. ज्यादा है। हाँ, सबसे ज्यादा फ्लोरीन का है सर। तो अगर मान लेते OF2 बना तो इसके ऊपर 4 जीरो है, तो O का निकालोगे sir. तो O, हाँ O -2 इज इक्वल टू 0, O का हो जाएगा +2, राइट? Yes, sir. Yes. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिडॉक्स रिएक्शन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज a redox reaction?
Which of the following is a redox reaction? NaCl plus KNO3. KNO3 gives you sodium plus KCl. Option 2, calcium C2O4 plus 2HCl. 2HCl gives you CaCl2 सर सेकंड वाला क्या है? calcium oxalate, magnesium hydroxide plus 2 ammonium chloride gives you MgCl2 plus 2NH4OH. 4 zinc plus 2 AgCN gives you 2 Ag plus Zn CN twice. चेक करो. इसमें कौन रिडॉक्स रिएक्शन है? ऑप्शन 4. Sir, option 3. ऑप्शन 3 में कहाँ नजर आ रहा तुमको? ऑप्शन 4. यस, ऑप्शन 4 ही सही है. ये 0 है, यहाँ पर +2 है, यहाँ पर हाँ, यहाँ पर ये +1 है, यहाँ 0 है. Yes, sir. Option 4. ऑप्शन 4 में ही हो रहा है. देखो ये हो जा रहा है ऑक्सीडेशन और इसका हो जा रहा है रिडक्शन. तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है. ओके, अच्छा. ठीक है सर. सबको मिल गया? सब लोग हुआ अनम्यूट? सर Thank you, ना sir. किया. देखो और कौन है? हो गया सब लोग अनम्यूट? हम यहाँ नहीं हुए. यस सर. Yes, sir. नाजिया, Yes, sir. इमरान. हो गया सब लोग? यस सर. Sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. Sir, 83. these questions are from which material? Our Narayana material. Sir, can you please send it again in the group? I do not have these materials. In these questions. You are not in the group? Sir, I am in the group, but I did not get it. Okay, send hi to me in the WhatsApp. Okay, sir. Now only send. Okay, sir. Sending. Yes, sir. I have. Till then, next write the question. Which one of the following? Whose sound it is? Whose sound it is? Put him in chat box. Whose sound it is? Yes, sir. Jacqueline. पता नहीं कहाँ. प्रिया नहीं पता. कुछ तो
मिला बेटा? हाँ हाँ सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Got it, sir. यस सर गॉट। No. Who is this? 1D. सॉरी। Received. Received. Sir, received, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, Okay. sir. Better you be in the group now. Immediately you will get lot of information. Okay, I will send after some time. Another student also. Okay. Question number 83. Which one of the following? Which one of the following is an example of disproportionate reaction? Okay, children. Number 1, Cl2 plus OH minus aqueous gives you ClO3 minus aqueous, Cl minus aqueous and water. Option 2, Ag2 plus aqueous plus Ag solid gives you 2Ag plus aqueous. Option 3, Zn solid plus CuSO4 aqueous gives you ZnSO4 plus Cu solid. And option 4, KClO3 solid gives you KCl plus O2. Tell me. The first Roll up option. a little bit. First option. First option. The first option. Disproportionate. This is the correct. Okay. Yes, sir. This Yes, is sir. compro. Yes, sir. Yes, sir. This is displacement. Yes, sir. This is decomposition. Decomposition. Yes, sir. Okay, next. So we'll go for some little bit more difficult questions. Okay. Okay, sir. Question number C. Question number 51. Page 38. Move to page 38. Okay. The oxidation state of iron in the coordination sphere of Prussian blue. Prussian blue is Prussian blue. Baba, please. Sir, Thoughts no out. idea. देखो ना आइडिया होगा. देखो कौन कर रहा है. प्लीज मेक योर अपने आप को कंट्रोल करो बेटा. जैतन से आ रहा है।
Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The oxidation number of iron in the coordination sphere of Prussian blue. हमको लग रहा है उसका ऑप्शन है, ऑप्शन 1 है +2, ऑप्शन 2 है 0, ऑप्शन 3 है +1 एंड ऑप्शन 4 है +3। ठीक है, प्रूसियन ब्लू ये कॉमन नाम है, इस तरह का कभी कभी फंस जाएंगे हम लोग। तो देखिएगा ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है आयरन का, प्रूसियन ब्लू। सर इसमें कुछ कैलकुलेशन है फिर या फिर याद करना कैलकुलेशन होता है? नहीं कैलकुलेशन है। हेलो, हाँ बोलिए। ठीक है, हम लोग सर आप ये रिकॉर्ड अपलोड करेंगे ना सर? हाँ कर देंगे। ओके सर। हाँ देखिए उसका स्ट्रक्चर ऐसा आ जाएगा, प्रूसियन ब्लू का स्ट्रक्चर। ठीक है, Fe, ठीक है, और यहाँ पर FeCN6। ठीक है, इसको थोड़ा सेट करना पड़ता है। यहाँ एक Fe4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर तो क्या पूछा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो बच्चों इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये वाला पूरा चीज, बाहर वाला को नहीं बोलते हैं। ठीक है, बाहर वाला को नहीं बोलते हैं। और बाहर वाला पे जो आयरन होता है ना वो 1 के ऊपर +3 होता है। यस सर। और Cn के ऊपर -1 होता है। इसके हिसाब से आयरन कैलकुलेट कर लो। यस सर। Cn और आयरन -1 हाँ, तो और आयरन का तो ऑक्सीडेशन स्टेट दो होता है ना, Fe2 भी होता है, यस सर Fe+। Fe3 चलो होता है। सॉल्व करो। हेलो हेलो, सर वो अंदर Fe का तो +6 आ रहा है। चेक करो, देखो यहाँ पर पहले इसको देखो, पूरा के ऊपर में कुछ नहीं है ना। यस सर। 0 हो गया। यस सर। 4 Fe हो गया ये वाला। यस सर। ठीक है, ये +3 वाला Fe है, प्लस Yes, Fe मालूम नहीं, फिर 6 तो Cn है। टोटल में लेना है। अब देखो, तो 0 4 3 12 और Fe और 6 तो 12 माइनस हो गया 0। -6। तो सर Fe के ऊपर में +-6। रुको, -6 तो नहीं आएगा आंसर, लेकिन ये रुको कहाँ Yes, sir, मिस्टेक वो हुआ तो हम बता मेटल देते है। हैं। कहाँ मिस्टेक हुआ रुको बता देते हैं। ये इधर में 4 है ना, तो यहाँ भी आपके पास देखो Fe इधर में अगर ये +2 हुआ तो यहाँ पर -4 आएगा, -4 आएगा। तो यहाँ पर ये 3 ले लेगा तो इसका 3 लेना पड़ेगा। ये फॉर्मूला ऐसा है। ठीक है,
ठीक है बच्चों, Yes. फार्मूला ठीक से हम लोग वो बात करने मतलब हम लगे। लोग को चार्ज इंटरचेंज करने देना है। रुको बता रहा हूँ, ये पूरा फार्मूला इसका ऐसा है, देखो Fe4 FeCN FeCN 6 और ये पूरा के ऊपर 3 है, ये पूरा फार्मूला है ये। यस सर, होल 3। हाँ, प्रूसियन ब्लू का। ठीक ठीक है, यस सर। अब इसमें देखो कि इसमें हमें देखना है कि ऊपर में कितना चार्ज है। यस सर। 0 है। यस सर। ठीक है, अब ये मालूम, इसमें ये चीज हमको मालूम है कि Fe के ऊपर +3 है यहाँ पर, हाँ हाँ। और Cn के ऊपर -1 है। यहीं पर Fe पे डाउट लग रहा है कि क्या होना चाहिए, तो करें। हाँ यस सर। तो अब देखो 4 ठो कितना है, 3 वाला। हाँ यस सर, 12। लोग एक बार हायरन वायरन सब लिख लेते हैं। 4 इंटू Fe, कौन हाँ सा, +3 वाला, यस सर, +3 प्लस 3 ठो Fe 3 Fe प्लस 18 ठो 18 तो CN इज इक्वल टू 0, राइट। यस सर। तो यहाँ पर 3 है तो 12 लिख देते हैं। 12 3 Fe +3 और 18 टू CN -18 इज इक्वल टू 0, राइट। यस सर। तो 3 Fe और इधर में कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। यस सर। तो वही बोले Fe सर, इज इक्वल टू +6 6 2 आ जाएगा। यस सर। Fe +2 ये ऑप्शन है यहाँ पर, हाँ ऊपर है सर। फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। यस सर। कौन सा क्वेश्चन नंबर, अच्छा सर, ये आयरन बेसिकली कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है सर? कौन सा? मतलब आप बताए ना कि वो +2 में होता है, +3 में, जनरली कौन सा स्टेट में होता है? कौन, आयरन? है सर। आयरन ना, हाँ हाँ हाँ। जनरली ये मतलब +2 में ही रहता है। तो सर आपको कैसे पता चला कि इधर +3 होगा? जब मैंने ना इसको, इस कंपाउंड को जब ये कंपाउंड बना था ना, तो सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया था, तो उसमें ऑक्सीडाइज होने का हाँ। चांसेस ज्यादा है। तो Fe2+ Fe+3 में भी चेंज होता है, और Fe3+ से वो 2+ में भी चेंज होते रहता है। तो ऐसा होते रहता है इसमें। अच्छा सर। ठीक है, इसलिए मेरे को पता चला कि ये वाला चीज 3+ है। अच्छा ठीक है, अच्छा। तो मनी, सर उसको हाँ, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे सर? कुल मिलाकर ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये वाला। अच्छा, मतलब ये इस, फॉर्मूला हाँ, याद मतलब रखना ये, पड़ेगा। हाँ, जब हम ये पूरा फार्मूला को ध्यान से देखते हैं ना, तो इसको 2 लेते हैं, इसको 3 लेते हैं, तभी सेट होता है ये, नहीं तो नहीं होगा। ऐसा नाम क्या है इस कंपाउंड का? इसका प्रूसियन ब्लू इसको कहते हैं, और वैसे इसका नाम है ना, इसका नाम हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे बोलो तो, आयरन को फेरो। वो तो फेरो उरो बोलने से कॉमन नाम आ जाएगा। ये पहले लिख लो, हम इसका नाम बता देते। देखो इसका नाम हो जाएगा, ये आपका कैटायन का काम करेगा। इसमें हम यस लोग, सर। हाँ, इसको हम लोग लिख देते हैं। इसका नाम यहाँ से स्टार्ट करते, देखो ये मेटल है, ये लाइगेंड है, तो हाँ। इसको, हाँ, इसको हम लोग लिखते हैं हेक्सासाइनो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हेटोसाइनो। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखते हैं आयरन। ठीक है, तो आयरन का नाम लास्ट में लिखा जा रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं फेरेट, और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिख देते हैं रोमन नंबर से। ठीक है, तो अभी तक कितना नाम लिखा गया, ये साइनो का लिखा गया, कितना टो है, 6 टो। यस सर। और ये आयरन लास्ट में आ रहा है, इसलिए हम लोग फेरेट लिख रहे हैं, AT लगा दे रहे हैं। हेक्सासाइनो और फेरेट। उसका, हाँ, और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, 2 आया ना यहाँ पर, यस सर। इसलिए उसको रोमन लेटर में लिख दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं आयरन। ठीक है, कौन सा आयरन, तो 3 बगल में ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में 3 3। लिख देते। ठीक है, अच्छा। ये यहाँ पर ये सब चीज नहीं यूज करते हैं कि टेट्रा आयरन,
और ट्राई ऐसा कुछ नहीं लिखते हैं, वो अंडरस्टूड है ये। जब आयरन कहाँ गया वो, आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट 3, फिर हेक्सा, फिर साइनो, फिर फेरेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया 2। 2। ये उसका नाम है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. But basically, that compound name is that FeCN6 name Hello? is ferrocyanide, sir. हाँ हेलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो। हाँ मैं भेज दूंगा 2-3 दिन में। तो अब देखिए, हाँ Sir, the right hand side compound is that is known as ferrocyanide. which one? Sir, at the right hand side one, that FeCN6, that is known as ferrocyanide. This one, this part. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, this ferric ferrocyanide and all, these are common name. Okay. For same molecule we can write ferric ferrocyanide because it is +3 means ferric, Acha. and this is +2 means ferro. Yes, sir. Ferric ferrocyanide, common name, that is common name. Yes, sir. So done, sir. Wait. हेलो, हाँ बोलो। हाँ, क्लास के समय मत कॉल किया करो बेटा। नहीं, हो गया क्या, 50 बज गया? चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही खत्म करो, बाय बाय। हाँ Yes, sir. ओके राइट। सर अपलोड कर देना। हाँ